Welcome to Lesson 1, English versus Turkish alphabets, A to E. Turkish alphabet sounds practice, A to E. Letter A. A. Example words. Anne means mother. Araba means car. Altın means gold. Adam means man. Ay means moon. Letter B. B. Example words. Bal means honey. Baba means father. Bahar means spring. Beyaz means white. Burun means nose. Letter C. J like J in jam. Example words. Çam means glass. Ceviz means walnut. Cüzdan means wallet. Cuma means Friday. Çen means life. Letter Ç. T like ç in chair. Example words. Çay means tea. Çocuk means child. Çanta means bag. Çorap means sock. Çalışmak means to work. Letter D. D. Example words. Dün means yesterday. Deniz means sea. Doktor means doctor. Dil means tongue or language. Dağ means mountain. Letter E. E. Example words. Ekmek means bread. Elma means apple. Ev means house. Eski means old. Erkek means man. Turkish sentences practice, A to E. इन टर्किश सेंटेंसेस को गौर से सुने और इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के साथ साथ उनके मीनिंग भी याद करते जाएं। Anne araba aldı. Anne araba aldı. In English, mother bought a car. In Urdu, माँ ने गाड़ी खरीदी. Anne araba aldı. Anne araba aldı. Balık denizde yüzüyor. Balık denizde yüzüyor. In English, the fish is swimming in the sea. In Urdu, मछली समंदर में तैर रही है. Balık denizde yüzüyor. Balık denizde yüzüyor. Cam evde çok temiz. Cam evde çok temiz. In English, the glass in the house is very clean. In Urdu, घर का शीशा बहुत साफ है. Cam evde çok temiz. Cam evde çok temiz. Çocuk çay içiyor. Çocuk çay içiyor. In English, the child is drinking tea. In Urdu, बच्चा चाय पी रहा है. Çocuk çay içiyor. Çocuk çay içiyor. Dün doktor geldi. Dün doktor geldi. In English, the doctor came yesterday. In Urdu, doktor kal आया. Dün doktor geldi. Dün doktor geldi. Deniz çok güzel. Deniz çok güzel. In English, the sea is very beautiful. In Urdu, समंदर बहुत खूबसूरत है. Deniz çok güzel. Deniz çok güzel. Ekmek elma ile güzel. Ekmek elma ile güzel. In English, bread with apple is nice. In Urdu, रोटी सेब के साथ अच्छी लगती है. Ekmek elma ile güzel. Ekmek elma ile güzel. Anne, माँ, araba, गाड़ी, aldı, खरीदी. Anne, araba, aldı. Balık, मछली, denizde, समुंदर में, yüzüyor, तैर रही है. Balık, denizde, yüzüyor. Cam, शीशा, evde, घर में, çok, बहुत, temiz, साफ. Cam, evde, çok temiz. Çocuk, बच्चा, चाय, चाय, içiyor, पी रहा है. Çocuk çay içiyor. Dün, kol, doktor, doktor, geldi, aya. Dün, doktor, geldi. Deniz, samundar, çok, बहुत, güzel, खूबसूरत. Deniz, çok güzel. Ekmek, roti, elma, सेब ile के साथ. Güzel, अच्छी लगती है. Ekmek, elma ile güzel. Warm-up quiz. Warm-up quiz. अब तक के प्रैक्टिस्ड वर्ड्स की मदद से इन उर्दू सेंटेंसेस की टर्किश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें. साथ साथ लिखते और बोलते भी जाएं. माँ चाय पी रही है.
बच्चा समुंदर में तैर रहा है। बहुत साफ। शीशा बहुत खूबसूरत है। माँ बच्चे के साथ खूबसूरत है। माँ कल घर आई। आइए देखते हैं कि आपके जवाब किस हद तक दुरुस्त हैं और फर्क की बुनियादी वजह क्या है। Turkish sentences की practice. Türkçe cümlelerin pratiği. माँ चाय पी रही है. Anne çay içiyor. Anne çay içiyor. बच्चा समंदर में तैर रहा है. Çocuk denizde yüzüyor. Çocuk denizde yüzüyor. बहुत साफ. çok temiz. çok temiz. शीशा बहुत खूबसूरत है. Cam çok güzel. Cam çok güzel. माँ बच्चे के साथ खूबसूरत है. Anne çocukla güzel. Anne çocukla güzel. माँ कल घर आई. Anne dün eve geldi. Anne dün eve geldi. दुन की जगह बदलने का फर्क. The difference in replacing. दुन. दुन डॉक्टर geldi. जोर कल पर है. कल डॉक्टर आया. Anne dün eve geldi. जोर anne पर है. माँ कल आई. तुर्की में लफ्जों की तरतीब फ्लेक्सिबल है, लेकिन जोर एम्फसिस बदल जाता है. अगर दुन शुरू में आए कल पर जोर, अगर सब्जेक्ट के बाद आए सब्जेक्ट पर जोर, फिर वक्त बताया जाता है. Eve. Evde. Ev. Ev means home, यानी घर. Eve means to home, या घर को या घर में आना डायरेक्शन बताता है. मिसाल, Anne dün eve geldi means माँ कल घर आई. Evde means at home या घर में लोकेशन बताता है. मिसाल, Cam evde çok temiz means घर में शीशा बहुत साफ है. यानी एव हरकत, मोशन या अराइवल के लिए है, जबकि evde जगह लोकेशन के लिए. ile karşı ल veya ल. ile means मतलब के साथ. फॉर्मल या रिटन टर्किश में ज्यादा इस्तेमाल होता है. मिसाल, ekmek elma, ile गुजैल. रोटी सेब के साथ अच्छी लगती है. ल veya ल means ये सफिक्स है जो नाउन के साथ जोड़ता है, मतलब भी के साथ है, लेकिन ज्यादा स्पोकन टर्किश में इस्तेमाल होता है. मिसाल, Anne çocukla güzel. माँ बच्चे के साथ अच्छी है, यानी दोनों का मतलब एक ही है, फर्क सिर्फ स्टाइल का है. ile means ज्यादा किताबी, रस्मी अंदाज. ल means ज्यादा कॉन्वर्सेशनल, बोलचाल का अंदाज. इस प्रैक्टिस में आप लेटर ए की मुख्तलिफ आवाजें या मल्टीपल साउंड्स ए आ और लेटर ई के मल्टीपल साउंड्स ए ई अ प्लस लेटर सी के मल्टीपल साउंड्स क स च सब कवर हो गए. ये आपको फोनिक्स पहचानने, फोनिक्स रिकग्निशन और जुमले रवानी से पढ़ने, सेंटेंस फ्लुएंसी में मदद देगा. रिमेंबर, टर्किश डिफरेंस वर्सेस इंग्लिश. फर्क यह है कि टर्किश में एक हर्फ हमेशा एक ही आवाज देता है, जबकि इंग्लिश में एक ही हर्फ कई तरह की आवाजें दे सकता है. यानी इन टर्किश एक लेटर इक्वल्स एक साउंड, नो वेरिएशन. एक हर्फ बराबर एक आवाज, कोई तब्दीली नहीं. इंग्लिश एक लेटर इक्वल्स मल्टीपल साउंड्स. अब आप लेटर ए से ई तक के हरूफ को पहचानना, तलफ्फुज करना और मिसालों के साथ मश्क करना सीख चुके हैं. CH को वर्ड या लेटर नहीं कहेंगे, बल्कि ये डायग्राफ है, यानी दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो एक अलग आवाज पैदा करता है. डायग्राफ का मतलब है कि दो हरूफ मिलकर एक नया आवाज या साउंड बनाते हैं. CH का साउंड, फोनेटिक सिंबल च. साउंड उर्दू में च जैसा. मिसाल के तौर पर चेयर चेयर, चीज चीज, चिकन चिकन. नाउ आप अब ए से ई तक के लेटर्स को आइडेंटिफाई, प्रोनाउंस और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये फाउंडेशन आपको अगले लेसन्स F to J, K to O में और स्ट्रॉन्ग बनाएगी. रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस करें, लिखें, बोलें और कंपेयर करें. इस तरह आप दोनों लैंग्वेजेस के फोनिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे.